Hello everyone, how are you all guys and I welcome you all today. So guys, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त रिवीजन. So I would be needing your 100% attention. ठीक है, हर एक चीज को हम लोग बहुत ही बारकाई से देखने वाले हैं, एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, माइन्यूटली देखने वाले हैं. एंड आई बिलीव दैट, आई पर्सनली बिलीव दैट whenever we are actually going further with our syllabus, it's actually we need to take a pause, we need to reflect, we need to revise the things, and yes, then we need to again go ahead. So definitely मैं बीच बीच में तुम्हारे रिवीजन सेशंस लेते रहता हूँ और लेते रहूंगा, हमेशा लेते रहूंगा. सो डेफिनेटली गाइस, दिस इज गोना बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो चलिए शुरुआत करें. शुरुआत करने से पहले लेट मी गाइस टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. You must be knowing that I'm a research analyst, I'm an investment advisor, and I am an educator for economic subject and a teacher by passion, right? So yes, और भी मैं तुम लोगों को कुछ थोड़ा सा फटाफट से प्लस के बारे में बता देता हूँ कि हाउ इट इज एक्चुअली, राइट. सो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर तुम लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, तुम्हें लेक्चर्स के शेड्यूल्स पता करने हैं, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और ये लिंक जो है ना, इस लिंक को ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है. एंड also, I want to tell you about the plus class and the iconic class. Now, what is the difference between? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये मैं प्लस ले लूं या मैं आइकॉनिक ले लूं. देखो यार, ये एब्सोल्युटली तुम लोगों का डिसीजन है कि तुम लोग को प्लस लेना है, तुम लोग को आइकॉनिक लेना है. लेट मी टेल यू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लस एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स ऑफ द आइकॉनिक. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस सेंटर में, यहाँ पर ये प्लस में तुम लोग को क्या क्या मिलेगा. यू आर गोइंग टू गेट द लाइव क्लासेस, यस सर. You're going to get weekly test, yes sir. You're going to get structured courses, unlimited access to the videos, yes definitely. कोई limited access नहीं है, unlimited access to unlimited videos for any of the batches in CA Foundation if you're taking the subscription for CA Foundation. So yes definitely ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगी. Iconic में भी ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन Iconic में you're getting something extra. You're getting the personal guidance, you're getting study planner, you're getting study material, that is printed books, you're getting expert guidelines as well. You are going to get the workshops, right? So that is going to be amazing. You're going to get test analysis as well. So definitely अगर किसी को लगता है कि यार मुझे ये सारा चीजें एक्स्ट्रा चाहिए है, so go for iconic. If you don't feel, you go for plus. So it absolutely depends on you. So Unacademy has given you everything, ठीक है. तुम्हें प्लस लेना है प्लस लो, आइकॉनिक लेना है आइकॉनिक लो. इतना ही नहीं, तुम्हें कॉम्बो लेना है तो तुम कॉम्बो भी ले सकते हो, ठीक है. So this is the best thing about it. So let me tell you guys, if you're taking the plus subscription के prices बहुत ज़्यादा reasonable है. If you see over here, 6 months का cost only 10,800 rupees. If you see 24 months का cost, it is 19,800 rupees, which is again very reasonable. पर month की cost हम लोग अगर निकाले तो यार ये बहुत कम होती है, ये 2,000 से नीचे है, ठीक है. And if you see the iconic subscription, yes definitely iconic subscription की भी prices तुम्हारे सामने है. If you see this 6 months की price, ये करीबन 22,500 का है. You can apply the code DAGA10, ठीक है. Don't forget to apply the code DAGA10 if you're taking the subscription. Not only this, I want to tell you that बहुत ही आसान है. अनअकैडमी का एप्लीकेशन तुम्हारे लर्निंग ऐप में है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप तुम डाउनलोड कर सकते हो. You can also just proceed with your selecting the goal. Once you select the goal, तुम्हें यहाँ पर ऐसा ये पेज दिख जाएगा. सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के दोनों के डिटेल्स तुम्हारे सामने है. You can apply the code DAGA10, you will get the discount as well. And you also got one new thing, that is combo subscription में iconic subscription, and this is great. This is really great and amazing, ठीक है. So the details are in front of you. 47,000 for 12 months and 80,000 for 24 months. So you can just go and check accordingly. Not only this, if you want any of the discounts on your subscription, Unacademy is also giving you rewards in form of scholarships. तो स्कॉलरशिप भी तुम लोग ले सकते हो. उसके लिए तुम्हें देनी पड़ेगी एक छोटी सी टेस्ट जो होती है हर संडे को. उसके लिए तुम एनरोल कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बाय यूजिंग द कोड DAGA10. यू विल बी एनरोल्ड इन दैट एंड डेफिनेटली गाइस यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर टेस्ट एज वेल. सो इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 months का एक्सटेंशन एब्सोल्युटली फ्री इफ यू आर टेकिंग 12 months का सब्सक्रिप्शन. So this is how it is. So this is how it is. Everything you got a chance for plus, iconic,
कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, देन ऑल्सो यू कैन गेट दिस एक्सटेंशन वाला ऑफर भी तुम लोग पा सकते हो। सो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाना है और डागा 10 कोड को अप्लाई करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। दैट्स इट गाइस, यू विल गेट द डिस्काउंट। सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस कोड एंड यू कैन अवेल योर डिस्काउंट्स। सो नाउ ये तो हो गई हमारी प्लस की बात, ये हो गई हमारी YouTube स्पेशल क्लासेस की बात। स्पेशल क्लासेस पे भी तुम लोग मुझे फॉलो करना भूलिएगा मत। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप, जहां पर तुम लोग बहुत सारे फ्री कंटेंट पढ़ सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। सो यस, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड वेरी वेरी फास्ट गाइस, एंड लेट मी टेल यू दैट अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारी रिवीजन की। आई नीड योर 100% अटेंशन, ठीक है। आई नीड योर 100% अटेंशन, ठीक है एवरीवन। एकदम अच्छे से ध्यान दोगे, एकदम अच्छे से ध्यान दोगे। ओके, सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं जो भी सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू कि कैसे एमसीक्यू फॉर्म में भी वो आएगा, ठीक है। सो लेट अस चेक वेरी वेरी फास्ट। सो डिमांड का अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मीनिंग देखूं, डिमांड का अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मीनिंग देखूं, सो डिमांड का मीनिंग क्या बोलता है यहाँ पर हमें? डिमांड का मीनिंग कहता है कि डिमांड का मीनिंग कहता है डिजायर, डिजायर प्लस कैपेसिटी प्लस रेडीनेस। सो सर 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 अगर लेकिन मेरा डिजायर है, हाँ मेरा कैपेसिटी है, हाँ और लेकिन मेरा रेडीनेस नहीं है सर, मैं पैसा खर्चा नहीं करना चाहता हूं सर, तो फिर वो डिमांड होगी क्या? नो सर। अगर मेरा डिजायर है, ठीक है, अगर मेरा डिजायर है, अगर मेरा कैपेसिटी नहीं है सर, लेकिन मैं खर्चा करने को तैयार हूं, आप पैसे दे दो सर, अरे नहीं मैं पैसे नहीं देने वाला, किसी को नहीं देने वाला, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव सर, लेकिन मैं रेडी हूं ना खर्चा करने, आप पैसा तो दो। नहीं भाई तेरे पास नहीं है ना, कैपेसिटी नहीं तो डिमांड नहीं है, ठीक है। सर अगर कैपेसिटी भी है और अगर रेडीनेस भी है, लेकिन सर इच्छा ही नहीं है वो एप्पल का फोन लेने की, सर इच्छा ही नहीं है, नहीं लेने का सर, कैपेसिटी है सर, बहुत पैसा है सर, सर रेडीनेस भी है सर, लेकिन डिजायर नहीं है, तो फिर डिमांड होगा क्या? नो। तो डिमांड रहने के लिए तुम लोगों को डिजायर भी होना चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए और रेडीनेस भी होना चाहिए, तभी हम लोग उसको डिमांड बोलेंगे। डिमांड के लिए डिजायर प्लस कैपेसिटी प्लस रेडीनेस, तो यहां पर हम लोग इसको करते हैं डिजायर प्लस कैपेसिटी प्लस रेडीनेस। तो मीनिंग ऑफ द डिमांड में MCQ, मीनिंग ऑफ द डिमांड में MCQ। सो MCQ मिल गया हमें। डिमांड इज डिजायर विच इज बैक्ड बाय द कैपेसिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। तो ऐसे भारी भरकम वर्ड्स आएंगे तुम लोगों को एमसीक्यू में, सो यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था मेन लेक्चर में, वो एग्जाम्पल को भी रेफर बैक कर सकते हो। देन लॉ ऑफ डिमांड, ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल जो कि बच्चा डायरेक्टली शुरू करता है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब जब प्राइस ऊपर जाएगा तब क्वांटिटी नीचे जाएगी। द आंसर इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। क्यों सर? क्योंकि तूने तो ये बोला ही नहीं। क्या नहीं बोला सर? other things being constant, yes, other things being constant, very important, very important, ये बोलना ही पड़ेगा बिकॉज माई लॉ ऑफ डिमांड उसके बिना अधूरा है, लॉ ऑफ डिमांड उसके बिना अधूरा है। Getting everyone? So what I'm trying to tell you over here is जब जब मेरी प्राइस ऊपर जाएगी तब तब मेरा क्वांटिटी डिमांडेड नीचे जाएगा, और जब जब मेरी प्राइस नीचे जाएगी मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं ये है तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड, ये तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड। और इस लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग याद रखेंगे अदर थिंग्स being constant, other things being constant,
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, यहां पर मैंने सिर्फ पॉइंटर्स में लिखा है तो ये आसान होता है समझने के लिए, ठीक है। ये जो पॉइंटर्स में लिखा है ना ये आसान होता है बहुत समझने के लिए, एरो ऊपर कर दिया है, ठीक है, एरो ऊपर कर दिया है। सो दिस एक्चुअली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। चलिए सर, ये कार्टून वाला डायग्राम तो ठीक है, कुछ असली वाला डायग्राम की कलाकारी दिखाओ सर, कुछ असली वाले डायग्राम की कलाकारी दिखाओ। ये नहीं चलेगा हमें, हमें तो चाहिए प्रॉपर डायग्राम। हाँ भाई, तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूं मैं, ठीक है, तुम्हारे लिए ही तो बैठा हूं, ठीक है, एक्चुअल भी बता दूंगा। अब देखना यहां पर, अब देखना यहां पर, ये देखिए, ये देखिए, अब मैं यहां पर निकालता हूं, ये वाला है मेरा प्राइस, प्राइस, ठीक है। और एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया, अब देखना मेरा प्राइस रेड्यूस हो गया, मेरा प्राइस रेड्यूस हो गया तो मेरा क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, प्राइस रेड्यूस तो क्वांटिटी इंक्रीज। तो व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर इज, ये था मेरा न्यू प्राइस P1, ये था मेरा न्यू क्वांटिटी Q1। यहां पर मैं लिखता हूं ये ओरिजिनल प्राइस और ये ओरिजिनल क्वांटिटी, ये ओरिजिनल क्वांटिटी। अब देखना यहां पर, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, try to understand, my price has reduced, my quantity has increased। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डिमांड कर्व डी कहेंगे, डिमांड कर्व डीडी। और ये डिमांड कर्व डीडी जो है इसका है नेगेटिव स्लोप, इसका है नेगेटिव स्लोप। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस नेगेटिव स्लोप को हम, मैं बोलने वाला हूं क्या, मैंने क्या बोला था याद है क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। और नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और क्या होगा, और क्या होगा यहां पर, मैंने और एक चीज बताई थी, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, इन दोनों की पड़ती नहीं, मैंने बोला ना, प्राइस एंड क्वांटिटी। Inverse relationship between price and quantity, downward sloping demand curve and negative slope. I am again and again taking this efforts by writing these points, by drawing this diagram, by explaining you the relationship, and also not only this, on top of it, I'm also writing over here कि ये MCQ में आ सकता है। I'm also writing over here कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। I'm also writing here कि इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये सब कुछ तुम लोग को जितना आसान लग रहा है ये वैसा की वैसा तुम लोग को एमसीक्यू में आएगा एग्जाम में, एंड यू विल रिमेंबर दिस डिस्कशंस, यू विल रिमेंबर कि मैं ये कैसे लिखता था, एंड यू विल रिमेंबर दिस वर्ड्स ऑन द टिप ऑफ योर टंग, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द मैजिक ऑफ रिपीटेटिव रिविजन्स, द मैजिक ऑफ रिपीटेटिव रिविजन्स। आई एम टेलिंग यू, कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। नींद से भी अगर मैं उठाकर तुम लोगों को सवाल पूछू ना तो तुम लोगों ने आंसर उसका देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ रिपीटेटिव रिविजन्स, एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ डिमांड के केस में तुम लोगों को ग्राफ समझ में आ गया, तो ग्राफ समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया तो एमसीक्यू समझ में आ गए। ग्राफ को देखकर हम लोग को क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते आने चाहिए, आंसर्स भी आइडेंटिफाई करते आने चाहिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं यहां पर शेड्यूल। अब ये शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो शेड्यूल में वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, बट 1 मिनट के अंदर तुम लोग को शेड्यूल बता दूंगा। शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में कुछ नहीं है, प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप बता रहा हूं मैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइस,
यहां पर मैं लिखता हूं क्वांटिटी। सो यहां पर मैंने लिख दिया प्राइस 50, 40, 30, 20 एंड 10। तो यहां पर मैं लिखता हूं क्वांटिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, प्राइस एंड क्वांटिटी। जब प्राइस नीचे जा रही है, क्वांटिटी ऊपर जा रही है, सो यहां पर ये शेड्यूल को देखकर भी इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप मेरे को समझ में आ गया कि जब प्राइस नीचे जा रहा है, क्वांटिटी ऊपर जा रही है। ठीक है, जब क्वांटिटी ऊपर जा रही है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप। सो स्केड्यूल को देखकर भी इसको शेड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स को देखकर भी हम लोगों को इसका रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए। और ये है तुम्हारा ग्राफ। वी आर डन विद द लॉ ऑफ डिमांड। और अभी मैं लेकर जाने वाला हूं तुम्हें आगे। कहां पर सर, कहां पर सर, ये देखना आगे। हम आ चुके हैं, ये देखो मैंने शेड्यूल उल्टा लिख दिया। फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। यहां पर देखना, ये डिमांड कर्व तुम्हारा। अब हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो गाइस, यस। सो देखिएगा यहां पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में ये क्या होता है सर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब होता है व्हाट्स अदर थिंग्स जो मेरी डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। सो मैं यहां पर लिखता हूं अदर थिंग्स, अदर थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अदर थिंग्स जो मेरी डिमांड को चेंज कर सकती है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में तो सारे अदर थिंग्स को कांस्टेंट कर दिया था, लेकिन मेरी लॉ ऑफ डिमांड चेंज हो सकती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से मेरी डिमांड चेंज हो सकती है। मेरा इनकम बढ़ सकता है, हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, हाँ, पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, हाँ, तो पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, यस। टैक्सेस चेंज हो सकते हैं, यस। अगर टैक्सेस भी चेंज हो जाते हैं तो भी मेरी डिमांड चेंज होगी, यस, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस, राइट। सो कितने सारे कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगा तो वो अभी ज्यादा परचेस कर लेगा, शायद अभी कम परचेस करेगा, फ्यूचर में ज्यादा परचेस करेगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो अभी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी बहुत कम अवेलेबल है तो शायद फिर फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होगी, अभी नहीं होगा। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से मेरी डिमांड चेंज हो सकती है। सो वो सब कुछ आएगा कहां पर, वो सब कुछ आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। वो सब कुछ कहां पर आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। सो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। सबसे पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। नाउ रिलेटेड गुड्स के केस में वेरी वेरी फास्ट हम लोग वी विल बी थोड़ा सा क्विक। हाँ, रिलेटेड गुड्स तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स के केस में हम लोगों ने क्या देखा, ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला। और ये दिल मांगे मोर पेप्सी। सो व्हाट हैव वी सीन, अगर पेप्सी का प्राइस, अगर एक सेकेंड, अगर पेप्सी का प्राइस राइज होता है तो कोका कोला का क्वांटिटी इंक्रीज होता है। सर ऐसे कैसे, अरे पेप्सी का प्राइस ज्यादा हो गया, लोगों ने पेप्सी को कम यूज किया, फिर लोगों ने कहा क्या किया, कोका कोला परचेज करना शुरू किया, तो पेप्सी के प्राइस के वजह से कोका कोला का क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। पेप्सी के प्राइस की वजह से कोका कोला का क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। तो हम कहना चाहते हैं रिलेटेड गुड्स के केस में, रिलेटेड गुड्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में यहां पर क्या होता है,
जब 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 किसी सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट की शायद डिमांड इंक्रीज हो सकती है, राइट ना? यस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस। सर दूसरा पॉइंट इनकम दिख रहा है। इनकम तो कितना इजी है, जब इनकम मेरा बढ़ जाता है मैं खर्चा ज्यादा करता हूँ, इनकम कम होता है खर्चा कम करता हूँ। सो इनकम इज सो सिंपल पॉइंट सर। यस एब्सोल्युटली, इट इज वेरी 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 सिंपल पॉइंट। सो दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है हमारे सामने वो क्या है? पहला तो हो गया सर रिलेटेड गुड्स, दूसरा है इनकम। सो आई कैन जस्ट मेंशन इट। ये देखो, एक मिनट देखो, सब्स्टिट्यूट देखो हाँ, तुम्हारे सामने देखो यार, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से कर दिया है, ठीक है? ये देखो कोका कोला का प्राइस एंड पेप्सी, ये एग्जाम्पल दिया था हम लोगों ने, ठीक है? तो तुम लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है? इनकम, इनकम ऑफ द बायर, यहां पर मैं लिखता हूं डायरेक्ट रिलेशनशिप। अरे आएगा तुम लोगों को, इनकम ऑफ द बायर अगर इंक्रीज होता है तो कौन सा टाइप का रिलेशन है, डिमांड कैसे होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ा, इनकम नीचे डिमांड नीचे, तो ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है? इसमें डिमांड का सर कर्व कैसे होगा? इसमें पॉजिटिव स्लोप होगा क्या? हाँ, पॉजिटिव स्लोप। सर एक बार डायग्राम भी बता दो ना सर। हाँ भाई, सब बताता हूं मैं, सब बताता हूं, डोंट वरी एट ऑल। ये हुई ना सर बात, कितना मजा आ रहा है सर, देखो। लाइक वाइक करो बच्चा पार्टी, ठीक है? लाइक वाइक करो, मजा आ रहा है तो। ऐसे एकदम शांत शांत बैठोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है? देखना यहाँ पर, मैं प्रश्न पूछूंगा तुम लोगों को बाद में, तुम लोगों को एकदम अच्छे से करने का है, ठीक है? यहां पर हम क्या बता रहे हैं तुम्हें? प्राइस, ये है प्राइस P1, ठीक है? ये क्या है यहाँ पर? Q, ये क्या है यहाँ पर? Q, ये है Q1, ठीक है? सो यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव स्लोप। यहां पर क्या हो गया? प्राइस के अलावा मैं यहां पर लिख देता हूं सिर्फ, सॉरी, इनकम, इनकम लिख देता क्योंकि इनकम की वजह से हुआ ना। तो ये इनकम, ये इनकम वन, ठीक है? न्यू इनकम। सो इनकम इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हो गया, यस। ओके, एक ही मिनट, एक ही मिनट, हाँ। सो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव स्लोप इन केस ऑफ इनकम, इन केस ऑफ इनकम। अगला 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 पॉइंट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के वजह से भी हमारी डिमांड में बदलाव आते हैं। एब्सोल्युटली आते हैं, एब्सोल्युटली आते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूं यहाँ पर, ये है हमारा कस्टमर। कौन है हमारा कस्टमर? ठीक है, ये देखना यहाँ पर, ठीक है? इज सो हैप्पी, ये हमारा कस्टमर। अभी इसको लगता है, कौन है ये पता है क्या? इसका नाम क्या है? इसका नामकरण करते हैं आज हम लोग, इसका नाम करते हैं हम लोग क्या? स्वास्तिक। इस स्वास्तिक को ऐसा लगता है कि सर फ्यूचर में ना प्राइस रिड्यूस होगा, फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होगा, तो अभी से परचेस नहीं करता है कुछ भी। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में प्राइस रिड्यूस होगा ऐसे उसको लगता है, इसलिए वो क्या करता है, अभी कुछ परचेस नहीं करता है। ही इज हैविंग द एक्सपेक्टेशंस कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में, इसलिए क्वांटिटी नीचे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट, ये जो है ना स्वास्थ्य के एक्सपेक्टेशन, मतलब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। तो कंज्यूमर को लगता है कि यार अभी कोरोना की वजह से सारी दुकानें शायद बंद हो जाएगी, तो अगर शायद सारी दुकानें शायद बंद हो जाएगी ऐसे हमारा एक्सपेक्टेशंस है, तो मैंने तो अभी ही चले गया और ज्यादा परचेस कर कर लेकर आ गया। मैं अभी ही चले गया और ज्यादा परचेस कर कर लेकर आ गया। तो क्या है? कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। अरे कोरोना में तुम लोगों ने भी किया होगा ना रे, कोरोना में तुम लोगों ने ग्रोसरी लेकर आए होगे ज्यादा,
मुझे तो ग्रोसरी का पता है, ठीक है। ग्रोसरी में गया था, बहुत ज्यादा लेकर आ गया, इतनी ज्यादा लेकर आ गई खराब हो गई ठीक है। इतनी भी ज्यादा नहीं लानी है, इतना भी डिमांड नहीं इंक्रीज करना है जितना तुम्हें अगले 6-7 महीने तक नहीं लगना। ऐसे कुछ नहीं हुआ था, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस होता है कि फ्यूचर में क्या बदलाव आ सकते हैं, अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट्स, अकॉर्डिंगली ही reacts. So consumer expectations થઈ ગયું. Now I want to tell you population. It is very very simple, guys. Population is very simple. See, more the population, more the quantity demanded. Less the population, less the quantity demanded. But now again, population में we can just check it about the composition of population as well. So what do you mean by composition? Composition मतलब we can say that कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे कितने हैं। अगर ये बच्चे ज्यादा है तो इनका डिमांड ज्यादा होगा, अगर नहीं 18 to 65 इज द मैक्सिमम क्राउड, तो ये क्राउड को लगने वाला जो डिमांड है ये सबसे हाई होगा, इस क्राउड को लगने वाला डिमांड सबसे हाई होगा। और ये जो बूढ़े लोग हैं, ये जो बूढ़े लोग हैं, अब ये बूढ़े लोग शायद कम है बहुत, ठीक है। मतलब बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जो भी कैटेगरी के लोग ज्यादा है, एज ओल्ड एज लोग ज्यादा है, तो अगर ये वाले कम है तो इनको लगने वाला डिमांड कम होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, द पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो डिमांड तो इंक्रीज होगा ही, पॉपुलेशन कम हुआ है तो डिमांड तो कम होगा ही। But now one thing to take back home is what? Also we need to analyze in details. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डिटेल में एनालिसिस करना है तो डिटेल में एनालिसिस के लिए हम लोग कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन को भी एनालाइज एब्सोल्युटली कर सकते हैं, ठीक है। यस, सो यहाँ पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन का पॉइंट तो થઈ ગયું। पॉपुलेशन के पॉइंट के बाद आई वांट टू चेक इट आउट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, नाउ व्हाट इज दिस कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आई वॉज द विक्टिम, ठीक है, आई वॉज द विक्टिम। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो मैम ने क्या बोला, अखिलेश हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल कब ड्यू होने वाला है? मैंने कहा 25th। सो वी हैव टाइम, राइट। तो हमेशा पहली तारीख से लेकर 1st of the month से लेकर 20th of the month तक बहुत सारा शॉपिंग होता है। मैंने कहा कि लेकिन ये बिल हमको ही भरना पड़ता है मैडम। मैम ने कहा अखिलेश अभी थोड़ी ना भरना है, वी आर गेटिंग द क्रेडिट पीरियड, राइट, एंड दैट टू ये तो बिल जनरेट होता है, उसके बाद तुम्हें और भी कुछ दिन मिलते हैं ना पैसा क्या करने के लिए, तुम्हें तो और भी दिन मिलते हैं पैसा बिल भरने के लिए। मैंने कहा हाँ, सो लेट्स शॉप ना देन, लेट्स शॉप देन। आई एम लाइक यार ये क्या बोल रहे हो तुम। तो यहां पर हम कहना चाहते हैं जब कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधार, आज पैसा नहीं देना है ना, पैसा तो फ्यूचर में देना है, तो आज हम लोग ज्यादा खरीद लेते हैं। लेकिन अगर ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती थी, तो मेरे पास अगर 100 रुपया है तो मैं 100 रुपया ही खर्चा करूंगा ना, मैं थोड़ी ना 200 रुपया खर्चा करूंगा, मैं तो 100 रुपया ही खर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी के कारण ना क्या हो गया पता है, क्या हो गया पता है? ये कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी मतलब आज मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं आज 100 रुपए है मेरे पास सिर्फ, लेकिन अभी फ्यूचर में मेरे पास और भी 100 रुपए आ जाएगा, तो मैं आज ही के दिन में 200 रुपया खर्चा कर देता हूं। आई एंड अप पेइंग मोर। सो द मोर द कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल, हम लोग ज्यादा खर्चा कर लेते हैं जनरली। सो डिमांड इंक्रीजेस इन दैट केस। मैंने तुम लोगों को और एक एग्जांपल दिया था, आई विल रिपीट दैट एग्जांपल अगेन, ठीक है। मैंने तुमको और एक एग्जांपल दिया था, मैंने तुम लोग को दिया था वो ग्रोसरी स्टोर वाला, ठीक है। ये देखो, यही वो बंदा तुम्हारा फ्रेंड, कौन? वही रे, ऊपर वाला।
एक सेकेंड रुको यार, ये देखो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था ना, वो चॉकलेट लेके जाता था और गिफ्ट करता था अपने फ्रेंड्स को। हाँ वही 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 वही। ठीक है, तो ये क्या करता है पता है क्या? ये क्या करता है पता है क्या? मैं बताता हूँ तुमको क्या करता है ये बंदा अपने पापा उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसके पापा उसको बोलते हैं कि ग्रोसरी स्टोर से ना तू ये 3 आइटम्स लेके आ, राइस लेकर आ, व्हीट लेकर आ, और राइस व्हीट और कुछ तो भी, ठीक है, और कुछ भी, ठीक है। सो 3 चीजें वो लेकर आता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो हमेशा क्या करता है पता है? ये ग्रोसरी स्टोर से ना, इसके साथ साथ वो हमेशा कैडबरीज वगैरह एक्स्ट्रा लेकर आता था। और यहां पर ना वो पैसा नहीं भर देते हैं, दे हैड द मंथली सेटलमेंट साइकिल, मंथली सेटलमेंट, ठीक है। तो मतलब वो उधार पर लेकर आते थे। ये भाई साहब अपना जाता था टशन में एकदम यहाँ पर, और लेकर आता सामान और बोलता था लिख दो बुक में, पप्पा पैसा भरेंगे। पप्पा को पता नहीं कि हमेशा चॉकलेट ज्यादा लेकर आता है या कुछ 2-3 चीजें ज्यादा लेकर आता है। तो बाद में जब पप्पा ने को लगा कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, तो पप्पा ने इसको बोला कि अब तू ना रुक जा, इसको बोला शॉपकीपर वाले को, तू अभी क्रेडिट मत दे, मैं अभी कैश लेने वाला, 1 महीना कैश लूंगा और फिर देखते बिल कितना आता है। तो फिर पप्पा ने इसको नेक्स्ट टाइम भेजा कैश के साथ। अब ये कैश के साथ भेजा तो इसने उतना ही लाया जितना पप्पा ने बोला। और अभी यहाँ पर पैसा कम हो रहा है, यहाँ पर मुझे कम खर्चा लगा महीने का, यहाँ पर ज्यादा लग रहा था मेरे को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी जब अवेलेबल थी ना, ये भाई साहब क्या करते थे पता है? ये चॉकलेट वॉकलेट लेकर आते थे, फिर बाद में पार्टी वार्टी करते थे, ठीक है। सो ये खर्चा बहुत करता था। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी से जनरली हमारा खर्चा इंक्रीज हो जाता है, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी से। समझा क्या? समझा क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, ये हो गया सर, ये भी हो गया, ये भी, हाँ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर। अरे एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर कहीं ना कहीं पर यहाँ पर ही कवर हो गया है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, इट इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में कि लॉकडाउन खुल जाएगा, तो लॉकडाउन खुल जाएगा तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि लोग टीवी देखने, टीवी नहीं सॉरी मूवीज देखने जाएंगे। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यार ये पीवीआर है ना, पीवीआर फुल रहने वाला है बाद में, ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स, ठीक है। तो मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि एकदम फुल रहेगा, ठीक है। तो क्या है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कोरोना चले जाएगा, नॉर्मल जिंदगी हो जाएगी, लोग खर्चा करेंगे, फिर लोग फिर से घूमने जाएंगे, फिर से ट्रैवलिंग इंडस्ट्री बढ़ेगा, फिर से होटल इंडस्ट्री बढ़ेगा, फिर से ये पीवीआर आइनॉक्स आईएमएक्स भाग जाएंगे, ठीक है। सो हम कहना चाहते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से हम लोग डिमांड को एनालाइज कर सकते कैसे होने वाली है, राइट। और क्या है सर? ये बड़ा मजेदार है भाई, टेस्ट। अब यहां पर हम लोग देखने वाले बैंड वैगन इफेक्ट, यहां पर हम लोग देखने वाले स्नॉब इफेक्ट, यहां पर हम लोग देखने वाले वेबलन इफेक्ट। ये 3 टाइप के इफेक्ट्स हम लोग देखने वाले अभी। बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट, 3 शब्द, 3 एग्जांपल्स यहां पर तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बचा पार्टी, यहां पर देखिएगा। तुम लोगों को मैंने बैंड वैगन इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया था गाइस, मेरा खुद का बैंड वैगन इफेक्ट। मेरे को क्या चाहिए था? अरे मेरे को पेन चाहिए था। कौन सा पेन? फाउंटेन पेन चाहिए था मेरे को बचपन में। क्या चाहिए था? फाउंटेन पेन। अब ये फाउंटेन पेन था बहुत महंगा, ये फाउंटेन पेन था बहुत महंगा, लेकिन एवरीवन इज इन द क्लास इज हैविंग दैट पर्टिकुलर पेन, तो मेरे को भी वो पेन चाहिए है। हालांकि मेरा नॉर्मल इंक पेन जो है ये 5 रुपए का पेन होता है, ये 5 रुपए का होता है, और ये वाला पेन ना ये 50 रुपए का होता है, लेकिन अपने को यही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सबके पास है। तो सबके पास है इसलिए मेरे को भी चाहिए। हाँ, पप्पा को बोला, पप्पा ने कहा वाई, मैंने कहा हैंडराइटिंग बहुत अच्छी, पप्पा ने कहा ठीक है ले ले। पप्पा ने कहा हैंडराइटिंग अच्छी आती, मैंने बस इतना ही बोला, पप्पा ने कहा ले ले। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि वी आर फॉलोइंग एवरीवन, बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव।
Demonstrative. What we do over here is we copy over here. क्या करते हैं हम लोग? कॉपी करते हैं. जो सब लोग कर रहे हैं वही मैं करूंगा, जो सब लोग को पास है वही मेरे को चाहिए. ऐसे होता है हमारे साथ, मतलब बहुत बारी होता है ऐसे. ठीक है, तो ये हो गया बैंड वैगन इफेक्ट. सर दूसरा इफेक्ट क्या था? दूसरा इफेक्ट है स्नॉब इफेक्ट. स्नॉब इफेक्ट. सर इसमें क्या होता है? अरे इसमें क्या होता है, इसमें ना हम लोग को यूनिक रहने का है. क्या रहना है? यूनिक. मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था दो लड़कियों का. ठीक है, दो लड़कियों का. अब ये दो लड़कियां जो है, यहां पर अगर गलती से भी इन्होंने कभी सेम ड्रेस पहन लिया तो झगड़े हो गए. They want to be unique. They want to stand out from the crowd. When everyone else is having that particular commodity, I am not going to have that particular commodity. So standing out from the crowd, having unique products is known as snob effect. Is known as what? Snob effect. तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था दो फ्रेंड्स का, और वो दो फ्रेंड्स वो बर्थडे पार्टी में गई, वो सेम ड्रेस पहनकर चली गई थी, और बाद में उनके झगड़े होते होते बच गए. करेक्ट ना? बाद में उनके क्या झगड़े होते होते बच गए, एंड एकदम 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 सब कुछ नॉर्मल रहा. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस इज, ये स्नॉब इफेक्ट एकदम उल्टा है. किससे? बैंडवैगन इफेक्ट से. बैंडवैगन इफेक्ट में जो सब लोग कर रहे हैं वो मेरे को करना है. स्नॉब इफेक्ट में जो सब लोग कर रहे हैं ना वो मेरे को नहीं करने का है. सर वेबलन इफेक्ट मतलब क्या? फिर कहने को तो ये वेबलन इफेक्ट है, लेकिन मैं तो इसको कहता हूं तास इफेक्ट. कहने को ये वेबलन इफेक्ट है. वेबलन मतलब बड़े लोग. ठीक है, बड़े लोग. बड़े लोग मतलब मैं तो कहता हूं तास इफेक्ट. ठीक है, क्या है? तास इफेक्ट. सर ये किसने लाया था? ये लाया था अमेरिकन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टिन वेबलन. क्या नाम है उनका? थॉर्स्टिन वेबलन. तो इन्होंने ये लाया था. इसमें क्या था पता है? इसमें ये लोग पर्पसली ज्यादा प्राइस पर ज्यादा खरीदते हैं. हाँ सर, ऐसे कैसे? हाँ, लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है कि ज्यादा प्राइस पे कम खरीदने का, और आप बोल रहे हो कि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा खरीदते. हाँ, ये लोग ऐसे ही बड़े लोग हैं ना. ये बड़े लोग हैं. दे वांट द सोसाइटी में स्टेटस, राइट? दे वांट द स्टेटस, हाई स्टेटस इन द सोसाइटी होता है इनका. और ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता है प्राइस. हमारे अंशुल सर, हम लोग बातें कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे. कन्वर्सेशन करते करते अंशुल सर ने हमसे कहा, क्या? मैंने अभी अभी डायमंड रिंग लिया है स्वाति मैम के लिए. डायमंड रिंग. आई वॉज लाइक कि सर डायमंड के भाव अभी आसमान छू रहे हैं. सर ने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अखिलेश, प्राइस इसका कितना भी ऊपर रहे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इनफैक्ट एक बार मैंने कमिटमेंट जो कर दी तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता हूं. तो इन्होंने कहा कि एक बार मैंने सोच लिया कि मेरे को खरीदना है तो मेरे को प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसका प्राइस कितना भी ऊपर क्यों ना रहे. हम इसे कहते हैं द तास इफेक्ट. क्या कहते हैं? तास इफेक्ट. एक्चुअली ये है वेबलन इफेक्ट. लेकिन तुम लोग अभी इसको याद रखना, ये किसने लाया था? थॉर्स्टिन वेबलन ने लाया था. एग्जाम्पल डायमंड रिंग का, एग्जाम्पल तास. ठीक है, गेटिंग एवरीवन, गेटिंग एवरीवन. ठीक है, यस. सो यहां पर ज्यादा प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी को खरीदना, इसको हम लोग कहते हैं वेबलन इफेक्ट. इसको हम लोग कहते हैं वेबलन इफेक्ट. ठीक है. सो गाइस, दिस थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हम लोगों ने देखे. बैंडवैगन, स्नॉब एंड वेबलन. ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आ सकता है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. ठीक है, यस. तो हम लोगों ने ये भी देख लिया. तो मैं यहां पर कुछ बताता हूं. ठीक है, मेरे पास इसके लिए कुछ है. ये देखो, बैंडवैगन इफेक्ट. कैसे? ये आंखें बंद कर कर जा रहे हैं आगे, एक दूसरे को फॉलो किए जा रहे हैं, बस कुछ नहीं दिख रहा है इनको आगे, आंखें बंद करके. राइट? देखो ना गाइस, ये भी चला. सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, सारे लोग एक साथ जा रहे हैं. ठीक है. I don't know where I'm going, but everyone is going there. It must be good. इतनी भीड़ है वहां पर खाने के लिए,
वहीं पर खाते, देखो वहां पर तो कोई भी नहीं है, तो वहीं पर खाते वो अच्छा होगा। ऐसे होता है क्या? ऐसे दो अगर ठेले हैं, ठीक है, दो पानी पूरी के ठेले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एकदम ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर वेटिंग में, यहाँ पर एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखे, हम लोग बोले कि अरे यहाँ पर ही जाते हैं। क्यों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो ये अच्छा होगा, हम लोग ना दूसरे के पास नहीं जाते हैं। ये ऐसे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। ये देखना, स्नॉब इफेक्ट, डिजायर ऑफ ओन यूनिक और एक्सक्लूसिव गुड्स, बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, बट दे नीड टू बी एक्सक्लूसिव। यहां पर देखना, वेबलन इफेक्ट में देखो, ये सारे लग्जरी गुड्स हैं, सारे ज्वेलरी, हैंडबैग्स, एकदम महंगी वाली स्पोर्ट्स कार, ठीक है। यहां पर देखना, दीज आर लग्जरी गुड्स। एमसीक्यू, MCQ, everyone pay attention. Demand rises as a result of price. Demand rises as a result of price. तो देखना, ज्यादा प्राइस पर ही ज्यादा डिमांड इसकी होती है, ज्यादा प्राइस पर ही ज्यादा डिमांड इसकी होती है। apparent contradiction of law of demand, apparent contradiction of law of demand, यहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ देता है। मैंने क्या बोला था, लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है कि जब ज्यादा प्राइस होगी तो कम डिमांड होगी, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ये किसने लाया था? थॉर्स्टेन वेबलन। MCQ, MCQ. So we are not just revising the concept thoroughly, but also we are watching over here the MCQs. हम लोग यहाँ पर MCQs को भी डिस्कस कर रहे हैं। So please guys, I am like, I need your 100% attention. I need your 100% attention. I want you to score very good marks. These repetitive revisions are for you guys, ठीक है। So make the most of it. हम लोग शायद, अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो डेफिनेटली हम लोग की रिविजन्स के थ्रू पढ़ाई हो सकती है, कितनी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। एंड उतने ही जोश के साथ अभी भी हो रही है, ठीक है। देखना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या हमारी डिमांड को चेंज कर सकती है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट द डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, टैक्स पॉलिसीज, तो टैक्स पॉलिसीज में बदलाव आएगा, अच्छा आया बदलाव तो डिमांड इंक्रीज होगी, नहीं आया तो डिमांड डिक्रीज हो सकती है। टैक्सेस अकॉर्डिंगली अफेक्ट कर सकते हैं। सो accordingly government policies also play a very important role in the shift of the demand. सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत हैवी खर्चा करने वाले हैं, हम लोग बिल्डिंग्स, हम लोग रोड्स, ये ब्रिजेस, ये सब कुछ बनाने वाले हैं। सो अगर इनका ज्यादा खर्चा होने वाला है तो इसका मतलब क्या है, डिमांड इंक्रीज होने वाली है। मतलब खर्चा, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड स्टील की इंक्रीज होगी, डिमांड सीमेंट की इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा और डिमांड बढ़ेगी। सो गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट के टैक्स रेगुलेशंस आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शिफ्टिंग द डिमांड, ठीक है। सो यस गाइस, आज हम लोगों ने यहां तक देख लिया है गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी हम लोग को एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी देखना है, लेकिन आई गेस आज हम लोग इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे। हम लोग फिर कभी एक्सेप्शन से आगे की रिवीजन करेंगे। सो आज मैंने तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाया है, आज मैंने तुम लोगों को मीनिंग पढ़ाया है, आज मैंने तुमको लॉ पढ़ाया है, आज मैंने तुमको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया है। आई होप दैट यू गॉट इट एंड यू माइट हैव एंजॉयड इट एज वेल। सो डेफिनेटली आज हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। और जाते जाते कहना चाहूंगा गाइस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। जाने से पहले एक और चीज कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं। 12 मंथ्स पर 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री ऑन द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एंड नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एज वेल। You also got a chance to participate in the scholarship test on every Sunday 12 बजे। You can enroll, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड तुम डागा 10 इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ऑल्सो गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कॉम्बो में भी आ चुका है, सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के कॉम्बो में। 12 months it's as 47,000 और 24 months का 80,000 only, and you can just check it out the subscription details for iconic
एंड फॉर प्लस एज वेल। तो प्लस में तुम्हारे 6 मंथ्स में ही गाइस 10,800 में 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, बहुत रीजनेबल है। 24 मंथ्स का लेते हो तो 19,800 ओनली। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 22,500 फॉर 6 मंथ्स। You can apply the code DAGA10 and you can just avail your discounts in place. So thank you so much guys. Daga 10 इस कोड को याद जरूर रखिएगा if you want to take any of the subscriptions on Unacademy, and also don't forget to subscribe to our channel and share the videos if you like it, and definitely guys ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होना चाहिए। if you are liking it, hit the like button fast. Thank you so much. Tata, bye bye, take care, happy studies.